السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں کا اللہ عز و جل ضامن ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو اللہ اس کا ضامن ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و ثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا۔ تیسرا وہ آدمی جو سلام یا سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کے اہم سرخیوں کی جانب۔ دھرما پوری سرینیواس میرے سیاسی استاد ہے۔ ٹی سرینیواس کے عزائم کے مطابق بی سی طبقے کو کانگریس حکومت اہم ترجیح دے رہی ہے۔ اسلام آباد منورو کاپو سنگم ضلع صدر کے طور پر ٹی سنجے کی حلف برداری تقاریب میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ نے کی شرکت۔ ریاستی حکومتی مشیر سدرشن ریڈی کے علاوہ رورل MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی ہمراہ موجود۔ مدینہ حادثہ پر ریاستی حکومت و ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خدمات قابل ستائش۔ حکومت ہند و تلنگانہ کے وفد کی بروقت کارکردگی و سعودی حکومت کی خدمات کا ریاستی مشیر محمد علی شبی نے کیا اظہار تشکر۔ بھیم گل منڈل کے رحمت نگر میں مختلف ترقیاتی کاموں سے متعلق اراضی پر ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڈ، بالکنڈہ MLA ویملا پرشانت ریڈی نے رکھا سنگ بنیاد۔ شہر نظام آباد میں DA فرنیچر شاپ کو اربن MLA دھن پال نے کیا افتتاح۔ کم قیمت پر تمام قسم کے فرنیچر ہمارے پاس دستیاب ہونے کا انتظامیہ نے کیا اظہار۔ محکمہ پولیس کے زیر اہتمام سری ستیہ سائی بابا کی 100 سالہ جینتی تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل DCP بسوا ریڈی نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مدینہ حادثہ پر ریاستی حکومت و ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خدمات قابل ستائش۔ حکومت ہند و تلنگانہ کے وفد کی بروقت کارکردگی و سعودی حکومت کی خدمات کا ریاستی مشیر محمد علی شبی نے کیا اظہار تشکر۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے حیدرآباد کے عمرہ زائرین نے جب مکہ میں عمرہ مکمل کر کے مدینہ شریف کو زیارت پہ جا رہے تھے، آئل ٹینکر سے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بس میں 45 حیدرآباد کے عمرے کے جانے والے شہید ہو گئے، اور ان خبر جیسا ہی ملی کہ مدینے سے 25 کلومیٹر دور پر یہ حادثہ ہوا تو سب سے پہلے خبر CM صاحب کو ملی، ریونت ریڈی صاحب کو۔ انہوں نے ہم سب کو الرٹ کیا، بولا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، پہلے تم لوگ حج ہاؤس بیٹھ کر وچار کرو اور مجھے مشورہ دو۔ تو CM صاحب کے مشورے پہ ہم سب، ہمارے اظہر الدین صاحب، ہمارے مائنارٹی منسٹر سے لے کے تمام چیئرمینس بیٹھے، پھر اس کے بعد ان کے بڑوں کے مکان پہ گئے ہم لوگ اور ان سے بھی دریافت کیا کہ بھئی آپ کی کیا رائے ہے، کیا تو وہاں پہ جو جلگے سے لاشیں ہیں ان کو یہاں لانا ہے یا وہیں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے بازو میں جو قبرستان ہے۔
निज़ामाबाद मुनूर कापू संगम में मुनाकिदा हल्फ बर्दारी तकारीब में डी संजय ने मुनूर कापू संगम जिला सदर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। निज़ामाबाद मुनूर कापू संगम में हल्फ बर्दारी तकारीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर डी संजय ने मुनूर कापू संगम जिला सदर के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल किया। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डी श्रीनिवास के अज़ाइम के मुताबिक बीसी तबके को आला तरजीह दी जाएगी। ज़िला कांग्रेस सदर के इंतखाबात में बीसी तबके को आला तरजीह देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत में 17 डीसीसी ओहदों को बीसी तबके के लिए देने के बारे में याद दहानी की और 75% बीसी एससी एसटी को मुख्तस करने का इजहार किया। कांग्रेस की जानिब से शुरू किए जाने वाले बीसी तबके को 42% रिजर्वेशन मुल्क में तारीख रकम करेंगी। इन्होंने बीसी तबके को एक प्लेटफार्म पर आने की अपील की। मुनूर कापू तबके की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करने का इजहार किया। నేను అప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తాను, నాకు రాజకీయంగా మొట్టమొదటి ఓనమాలు నేర్పించింది స్వర్గీయ డి శ్రీనివాస్ గారే. నేను కరాటే మాస్టర్గా ఉన్న రోజుల్లో నన్ను బలవంతంగా పిలిచి జిల్లా ఎన్ఎస్పి అధ్యక్షుడిగా కావాలి, నువ్వు చేయగలుగుతావని నేను ఒప్పుకోకుండా కూడా ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి నా చేతిన పెట్టినటువంటి మా గురువు గారు డి శ్రీనివాస్ గారు. श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन ने इंदिरामा साड़ियों की खवातीन में की तकसीम। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासत तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर रियासत तेलंगाना खवातीन के खुद एतमादी में इजाफा करने के मकसद के तहत साड़ियों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम को शुरू किया है। इस हिस्से के तहत ग्राम पंचायत दफ्तर में कांग्रेस पार्टी मंडल कायदीन IKP के ज़ेरे एहतमाम खवातीन को साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन डी साइलू ने कहा कि रियासत तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में खवातीन की खुद एतमादी में इजाफा करने के मकसद के तहत साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई है। साबिक़ा BRS हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में नाक़िस मियार की 50 रुपये और 100 रुपये पर मबनी साड़ियों की तकसीम करते हुए 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान करने का इजहार किया। लेकिन अब बसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में बेहतरीन क्वालिटी के 600 ta 700 रुपये पर मबनी साड़ियों को रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर खवातीन को साड़ियों की तकसीम अमल में लाना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन रामू साइलू शोभन आसिफ व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में इंदिरामा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर किसान नगर में इंदिरामा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन को इंदिरामा साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद खवातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद इस्क़ामात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अलावा इनकी खुद एतमादी में इजाफा करने के मकसद के तहत इंदिरामा जयंती के मौके पर खवातीन को साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि इंदिरामा साड़ियों बालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले खवातीन को फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में IKP अमला कांग्रेस कायदीन C नरेश गणेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा में इनकाद अमल में लाए गए मुफ्त आँखों के तिब्बी कैंप को मुस्बित रद्द अमल हासिल हुआ। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ महालक्ष्मी मंदिर के पास मुनूर कापू संगम में मुफ्त आँखों का तिब्बी कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निज़ामाबाद आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नवीन ने मुफ्त आँखों के तिब्बी कैंप में शिरकत करने वाले तकरीबन 60 अफराद के आँखों का टेस्ट करते हुए मोतीबीन की शनाख्त होने के बाइस इन्हें मुफ्त सर्जरी करने का इजहार किया और इन्होंने कहा कि बालकोंडा मंडल के मराकिज़ पर वाक़ महालक्ष्मी मंदिर के पास मुनूर कापू संगम में इनकाद अमल में लाए गए मुफ्त आँखों के तिब्बी कैंप में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए
इस तिब्बी कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में शिरकत करने वालों के आंखों का टेस्ट करते हुए मोतीबीन की शनाख्त होने के बाइस इनकी मुफ्त सर्जरी करने का इजहार किया। सालूरा मंडल के रायतू वेदिका भवन में इंदिरामा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई। सालूरा मंडल के मुकाम पर वाक़े रायतू वेदिका में इंदिरामा साड़ियों की खवातीन में तकसीम पर मबनी प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इंदिरामा साड़ियों की मकामी खवातीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल से मुतालिक मौज़ूआत में इल्म मुक़ीम खवातीन की कसी तादाद ने शिरकत करते हुए इंदिरामा साड़ियों को हासिल किया। हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में इंदिरामा साड़ियों को खवातीन में फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मकामी अवाम सोसाइटी चेयरमैन जनार्दन सुरेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే మరియు ప్రభుత్వ సలహాదారులైనటువంటి సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మన జిల్లాలో కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిన్ననే ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మన సాలూరా గ్రామంలో సుమారు 1100 నుంచి 1200 మంది డాక్రా మహిళలకు ఈరోజు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం మన సాలూరులో ఈరోజు సాలూరా గ్రామంలో చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఈరోజు పనుల ఉండటం వలన మహిళలు చాలామంది రాలేకపోయినారు. మరి దీన్ని ఇదే విధంగా కొనసాగించి ఈ 2-3 రోజుల్లో సంబంధిత అధికారులు మరి గ్రామ సమాఖ్య లీడర్లు మరి అధ్యక్షులు అందరూ కూడా దీన్ని తొందరగా भीमगल मंडल के रहमत नगर में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ की आमद के मौके पर मुकामी अवाम व कांग्रेस कायदीन ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। भीमगल मंडल के रहमत नगर में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ की आमद के मौके पर मुकामी अवाम व कांग्रेस कायदीन ने भारी फूलों का माला पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने देहात में महकमे मनादिर के ज़ेर एहतमाम 50 लाख रुपये मालियती रकम से तामीर किए जाने वाले नई मंदिर की अराजी पर संगे बुनियाद रखा और इन्होंने साबिक़ा में बी गंगाधर गौड़ ने देहात में मंदिर की तामीर करने के ताल्लुक से याद दहानी की। बादअज़ा इंदिरामा महिला शक्ति साड़ियों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मुकामी एमएलए प्रशांत रेड्डी और कॉरपोरेशन चेयरमैन इरावती अनिल अन्वेश रेड्डी बालकोंडा इंचार्ज सुनील रेड्डी के अलावा डीसीसी कायदीन व दीगर के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बचपन के खुशगवार लम्हात को ताहयात तक याद रखेंगे। वालिदैन की खिदमत करने के बाइस ही मैं आज आला मुकाम हासिल किया हूँ और पीसीसी सदर के तुलबा पर फाइज होने की उम्मीद नहीं की थी और गांव से मेरा ताल्लुक आखिरी सांस तक जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि गांव की तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश करेंगे और देहात में होते हुए जाने वाले टेम्पल कॉरिडोर रोड के लिए 380 करोड़ से ज़ायद फंड की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि इस राहत नगर टेम्पल कॉरिडोर रोड से करीमनगर निज़ामाबाद के दरमियान सेंटर पॉइंट होगा और देहात में इंटीग्रेटेड स्कूल आने के बायस SC ST BC तुलबा के लिए तालीमी सहूलियत दस्तियाब में आने का इजहार किया। నా సొంత గ్రామం నేను పుట్టిన గ్రామం రాహత్ నగర్లో 50 లక్షలు విలువ చేసే లలితాదేవి దుర్గా మందిర్ ఆలయానికి భూమి పూజ చేయడం రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ దుర్గా గుడికి 50 లక్షల రూపాయలు హెచ్చించి ఇవాళ భూమి పూజ చేశాం. అదేవిధంగా బాల్కొండ నియోజకవర్గానికి వచ్చే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూలు మా గ్రామంలో నెలకొల్పాలని దానికి సరిపడా 10 ఎకరాల భూమి గ్రామంలో ఉంది. గతంలో మేము గ్రామానికి ఇచ్చిన భూమి ఉంది కాబట్టి దాంట్లో నెలకొల్పే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరడం జరిగింది. రెండింటికి మించి హ్యామ్లో దేవాలయాలు కలుపుతూ ఆ దేవాలయాల మధ్యన మా గ్రామం రహత్ నగర్ కలుపుతూ 4 లైన్ రోడ్ ధర్మపురం నుంచి కొండగట్టు వరకు, కొండగట్టు మధ్య నుంచి వేములవాడ వరకు, వేములవాడ రుద్రంగి మానాల నుంచి మా గ్రామం రహత్ నగర్ నుంచి దెంబద్రి గుట్ట వరకు, అక్కడి నుంచి బాసర్ టెంపుల్ వరకు ఈ టెంపుల్ కారిడార్ రోడ్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు శాంక్షన్ చేశారు.
مرکزی حکومت ماؤ نوازوں کا فرضی انکاؤنٹر بند کرنے کا CPI-ML ماس لائن قائدین نے کیا مطالبہ۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع گٹکل دیہات میں CPI-ML ماس لائن ریاستی قائد پی راما کرشنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت آپریشن کگار کے نام سے ماویسٹ پارٹی کے قائدین کا تعاقب کرتے ہوئے ختم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ماویسٹ قائدین بھی ہندوستانی شہری ہونے کے تعلق سے یاد کرنا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوانین پر عمل آوری کرنے والی حکومت آئین کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماویسٹوں کو ختم کرنا آئین کے اصولوں کے مترادف ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کیے گئے آپریشن کگار کو روک کر عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں CPI-ML ماس لائن ضلع قائدین R رمیش، ڈویژن قائدین R دامودر، B کشور، منڈل قائدین M انیس کے علاوہ V بھوما گوڑ نے شرکت کی۔ ایڑپلی کے IKP دفتر میں خواتین میں اندرما ساڑیوں کی گئی تقسیم۔ ایڑپلی کے IKP دفتر میں حکومت کی جانب سے فراہمی عمل میں لانے والے ساڑیوں کی تقسیم پر مبنی پروگرام کو ضلع پریشد کے سابقہ صدر رجیتا یادو کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد دیے گئے وعدوں کے مطابق مہالکشمی اسکیم کے تحت خواتین کو RTC بسوں میں مفت بس کی سہولت اور استری ندھی کے تحت قرضہ جات کی فراہمی عمل میں لا کر اندرما ساڑیوں کی خواتین میں تقسیم عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں APM راجندر، مہیلا صدر ہیما رانی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ پولیس کمشنر P سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق نظام آباد کمشنریٹ دفتر میں ایڈیشنل DCP بسوا ریڈی کے زیر اہتمام سری ستیہ سائی بابا کی 100 سالہ جینتی تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ نظام آباد پولیس کمشنر P سائی چیتنیا کے احکامات کے مطابق نظام آباد کمشنریٹ دفتر میں ایڈیشنل DCP ایڈمن بسوا ریڈی کے زیر اہتمام سری ستیہ سائی بابا کی 100 سالہ جینتی تقاریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر سری ستیہ سائی بابا کی تصویر کو پھولوں کا مالا پہنانے کے بعد ایڈیشنل پولیس کمشنر نے کہا کہ 23 نومبر 1926 کو P وینکپا راجو و ایشورما جوڑے کو غریب کاشتکار خاندان میں ضلع اننتا پورم پٹاپرتی نامی دیہات میں پیدائش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سری ستیہ سائی بابا کی جانب سے قائم کیے گئے طبی و تعلیم میں فراہم کردہ خدمات سے کئی زندگیاں روشن ہونے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں آفس پریزیڈنٹ شنکر ریزو، انسپکٹر تروپتی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ رینجل منڈل کے مختلف موضوعات میں اندرما ساڑیوں کی خواتین میں کی گئی تقسیم۔ رینجل منڈل کے مقام پر کانگریس حکومت CM ریونت ریڈی کی جانب سے کی گئی اپیل اور ریاستی حکومتی مشیر بودن MLA سدرشن ریڈی کے احکامات کے مطابق آج رینجل منڈل کے مقام پر واقع مختلف موضوعات میں مقیم خواتین کو اندرما ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے خواتین کو بااختیار بنانے والوں کی ترقی کے لیے کئی منفرد اسکیمات کو روبے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس حصے کے تحت پہلے مرحلے کے طور پر مہالکشمی اسکیم تحت خواتین کو RTC بس میں مفت بس سفر کی سہولت اور اندرون 2000 یونٹ برقی استعمال کرنے والوں کو زیرو برقی بل کی فراہمی اور استری ندھی کے تحت خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے قرضہ جات کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ ویلپور منڈل کے مقام پر اندرا مہیلا شکتی پروگرام کے تحت خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ویلپور منڈل کے مقام پر ریاستی حکومت کی جانب سے باوقار معیاری ساڑیوں کی تقسیم پر مبنی پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر AMC وائس چیئرمین نرسا ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM ریونت ریڈی کی کامیاب ترین قیادت میں کئی منفرد اسکیمات کو کامیابی کے ساتھ روبے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس میں خاص طور پر خواتین کو بطور تحفہ ساڑیوں کی تقسیم کے علاوہ RTC بسوں میں مفت بس سفر کی سہولت اور مفت برقی کے علاوہ باریک چاول کی فراہمی کے ساتھ ساتھ خواتین کو 2 لاکھ تک مفت قرض اور 10 لاکھ روپے تک کا مفت حادثاتی بیمہ کی سہولت حکومت کی جانب سے دینے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں AMC ڈائریکٹر G راجندر، اندرما کمیٹی ممبر رمیش M راجندر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ سری ستیہ سائی ضلع پٹاپرتی میں واقع ہیلوی اسٹیڈیم میں انعقاد عمل میں لائے گئے سری ستیہ سائی
7 साला जयंती तकारीब में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। श्री सत्या साई जिला पुट्टापर्ती में वाक़ हेल व्यू स्टेडियम में इनकाद अमल में लाए गए श्री सत्या साई सदर साला जयंती तकारीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि इंसानी हमदर्दी के तय फलाही खिदमत अंजाम देने के अलावा तिब्बी तालीम के अलावा पीने के पानी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल किया और ज़िंदगी में एक मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी होने वाली हिम्मत दी। इन्होंने कहा कि 140 ममालिक में सत्या साई बाबा के भक्तों की कसीर तादाद मौजूद है। वो मुख्तलिफ ममालिक में खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। వ్యక్తిగతంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఒక గొప్ప గౌరవం, అరుదైన అవకాశం. బాబా గారు మనుషుల్లో దేవుడిని చూశారు, ప్రేమతో మనుషులను గెలిచారు, సేవలతో దేవుడుగా ఈనాడు కొలువబడుతున్నాడు. మానవులను ప్రేమించాలి, ప్రేమనే గొప్పది, ప్రేమ ద్వారా ఏమైనా సాధించవచ్చు అని చెప్పి బాబా గారు నిరూపించారు. వారు ఉన్నా వారు మన మధ్యలో లేకపోయినా వారి భావన, వారి ఆలోచన, వారిచ్చిన స్ఫూర్తి ఈనాడు ఈ శత జయంతి ఉత్సవాలలో నిర్వాహకుల అందరిలోనూ కనిపి बड़े शहरों के तर्ज पर शहर निजामाबाद तरक्की कर रहा है। तमाम किस्म के फर्नीचर दस्तियाब में लाने के लिए डीए फर्नीचर शॉप निजामाबाद में कायम करना काफ़ी खुश आइन होने का किया इजहार। शहर निजामाबाद के विनायक नगर में डीए फर्नीचर शॉप को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली धनपाल ने कहा कि बड़े शहरों के तर्ज पर शहर निजामाबाद तरक्की कर रहा है। ज़िला निजामाबाद में डीए फर्नीचर शॉप को कायम करने वाले इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी गई। बाद नज़र डीए फर्नीचर के मालिक साई रेड्डी ने कहा कि शहर निजामाबाद में आज हमारा 6वां ब्रांच को कायम करना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हमारे शॉप में बहुत ही कम कीमत पर तमाम किस्म के फर्नीचर दस्तियाब होंगे। ज़िले के आवाम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। फर्नीचर डीए फर्नीचर वर्ल्ड फर्नीचर షాపు ఒక కొత్త ట్రెండ్ తోటి కొత్త కలెక్షన్ తోటి వినాయక్ నగర్ ప్రాంతంలో ప్రారంభించబడ్డది. ఇది వారి 6వ బ్రాంచ్. వీటి నిర్వహణ యాజమాన్యం సాయిరెడ్డి గారు మరియు వారి శ్రీమతి స్వప్న గారు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ ఉన్నారు. గత 5 షోరూంలు డిఏ ఫర్నిచర్ వరల్డ్ ఈరోజు నిజామాబాద్లో షాప్ ఎమ్మెల్యేతో ఓపెన్ జరిగింది. చాలా సర్వీస్ ఇచ్చి ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో ఈరోజు ఓపెన్ జరిగింది. మా దగ్గర స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే తక్కువ బడ్జెట్లో క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్. ఇస్ అ కంపేర్ టు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఎవ్రీ ఈ షాప్తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మనం లగ్జరీ ఇచ్చేసి తక్కువ ప్రైస్లో ఇస్తున్నాము. शहर निजामाबाद के माधव नगर में वाक़ प्रेसिडेंसी वर्ल्ड स्कूल में आयुष 2005 हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम सबको मुतासिर किया। शहर निजामाबाद के माधव नगर में वाक़ प्रेसिडेंसी वर्ल्ड स्कूल में आयुष 2005 हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डीईओ अशोक ने शिरकत की। वो सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा मुख्तलिफ मसाइल से निजात दिलाने के साथ साथ ज़िंदगी गुजारने के उसूलों के अलावा सेहत बख्श ख़यालात को उभारने के लिए मुख्तलिफ स्टार्स को तुलबा की जानिब से नुमाइश की गई। ये स्टार सबको मुतासिर किया। इस मौके पर तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम को तुलबा के वालिदैन ने खुसूसी दिलचस्पी के साथ मुशाहिदा किया। इस मौके पर डीओ अशोक ने कहा कि तुलबा खुसूसी दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करके आला ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश की। वो बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाने वाले प्रेसिडेंसी स्कूल के इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। ओहदे से सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन माशरे के लिए मिसाल होने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। तेलंगाना ऑल पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सनल्स एसोसिएशन की जानिब से ज़िला निजामाबाद में 3री महासभा का शानदार पैमाने पर इनकाद अमल में लाया गया। इस महासभा में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन एमएलए ने कहा कि हुकूमती खिदमात में कलीदी किरदार अदा करके ओहदे से सुबुकदोश होने वाले मुलाजिमीन को माशरे के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। वो हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए जाने वाले हर एक महकमे जात में खुसूसी खिदमात से आवाम की ज़िंदगी
मुस्बित तब्दीली लाने वाले पेंशनर्स होने का इजहार किया। इन्होंने रिटायर्ड मुलाजिमीन माशरे के लिए एक मिसाल है। इन्होंने मजीद कहा कि पेंशनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हेल्थ कैंप के ताल्लुक से बेदारी प्रोग्राम और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा तालीमी इमदाद और मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम का मुसलसल इनेकाद करना और आपका तजुर्बा व ताउन रहनुमाई माशरे के लिए निहायत ज़रूरी होने का इजहार किया। చాలా యాక్టివ్ హెల్తీగా ఉంటారు. కారణం మీ అసోసియేషన్ ద్వారా అనేక కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేపడుతూనే ఉంటారు. రిటైర్ అయినాము మనం ఇంట కూర్చుంటే ఏముంటుంది, ఇంకా డల్ అయిపోతాము, లేని బీమార్లు వస్తూ ఉంటాయి. బయట ప్రపంచం తిరిగితే లేదా ఇతర యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటే డేలో రేజ్ మనం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఉంటే తప్పకుండా హెల్తీగా ఉంటాం. మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, రామ్మోహన్ గారు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఇబ్బంది పెట్టిందని అడిగింది నాకు. ఇప్పుడు నేను ఈ స్థానంలో ఉన్నా అంటే, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా అంటే అది మీ అందరి ఆశీర్వాదంతోనే నేను ఇక్కడ ఉన్నా. నా బాధ్యత ఎవరు ఏ సమస్యలు ఉన్నా కానీ తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేయడం నా బాధ్యత. మా సోదరుడు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. నా వర్కింగ్ స్టైల్ ఇప్పుడు కాదు, గత 30 సంవత్సరాల నుండి నాదంతా కూడా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సోషల్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఏదైతే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ బెనిఫిట్స్ అయితే बोधन शहर में महालक्ष्मी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम अम्मावारी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। बोधन के वार्ड नंबर 16 में महालक्ष्मी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सारोजा अम्मावार मंदिर के पास पूजा की गई। बांधजा मंदिर में शानदार पैमाने पर पिद्दा पोच अम्मावारी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती हुकूमती मुशीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत करते हुए पूजा की बाद अज़ां भक्तों के लिए ताम का एहतमाम किया। ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు దానికి సరిపోయే ప్లేస్ కూడా లేదంటే, జాగా లేదని, ప్లేస్ లేదని, మరి నా తాతకి భూమన్న కన్నె భూమన్న గారి ల్యాండ్, ఉదయ్ గారి తాత కన్నె భూమన్న గారి ల్యాండ్ మనకు అవసరం ఉన్నంత ఇచ్చినందుకు వాళ్ళకు అభినందనలు చెప్తూ, అదేవిధంగా గ్రామస్తులు కూడా మనమైతే రేజ్ చేస్తామో మా తల్లి భగవంతుని అందరినీ ప్రార్థిస్తాము। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। धर्मापुरी श्रीनिवास मेरे सियासी उस्ताद है। डी श्रीनिवास के अज़ाइम के मुताबिक बीसी तबके को कांग्रेस हुकूमत अहम तरजीह दे रही है। निज़ामाबाद मुनूरु कापू संगम जिला सदर के तौर पर डी संजय की हल्फ बर्दारी तकारीब में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी हमरा मौजूद। मदीना हादसा पर रियासती हुकूमत व रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की खिदमत काबिल सताइश। हुकूमत हिंद व तेलंगाना के वफद की बरवक्त कारकर्दगी व सऊदी हुकूमत की खिदमत का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने किया इजहार तशक्कुर। भीमगल मंडल के रहमत नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक अराजी पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, बालकंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। शहर निजामाबाद में डीए फर्नीचर शॉप को अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इफ्तिताह। कम कीमत पर तमाम किस्म के फर्नीचर हमारे पास दस्तयाब होने का इंतजामिया ने किया इजहार। महकमे में पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्री सत्या साई बाबा की 7 साला जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।